ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ گدھا، سب سے زیادہ بھکاری، بھیک مانگنے والے لوگ کسی کمیونٹی کے اندر، کسی قوم کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ دنیا کے اندر بے شمار قومیں ہیں، ان کے اندر بھی غریب ہوں گے، ان کے اندر بھی فقیر ہوں گے، لیکن جس قدر ہماری قوم میں پائے جاتے ہیں آپ کو اور کسی قوم میں نہیں ملے گا۔ جبکہ ہمارے یہاں بہترین نظام ہے فقر کو دور کرنے کا، فاقے کو دور کرنے کا، لیکن اس کے باوجود کبھی چوراہوں پر، کبھی مسجد کے دروازوں پر، کبھی درگاہوں پر، کبھی ریڈ لائٹ پر، یہاں وہاں جگہ جگہ آپ کو لوگ بھیک مانگتے ہوئے ملیں گے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے ملیں گے، اپنی عزت کو داؤں پر لگاتے ہوئے ملیں گے۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 کے اندر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے۔ رب عز و جل یہ فرما رہا ہے کہ عزت ہے تمہارے لیے، اور تم اپنی عزت کو بیچ دے رہے، تھوڑی سی دنیا جمع کرنے کے چکر میں یہاں وہاں جگہ جگہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا ينبغي للمؤمن ان يضل نفسه، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے اور ہاتھ پھیلا کر کے لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کر کے مسلمان کہلانے والے لوگ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اپنے چہرے کے پانی کو ضائع کرتے ہیں، اپنی عزت کا بٹا لگاتے ہیں۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کے اسباب جہاں بے روزگاری ہے وہیں آرام طلبی ہے، حرام خوری ہے، اور دیگر کاموں کے بجائے اس کام میں زیادہ منافع نظر آنے کی وجہ ہے شراب، جوا کی لت ہے۔ جب انسان کو نشہ شراب چڑھتا ہے اور وہ ادھر ادھر پیسے نہیں پاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی طلب کو پورا کر سکے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، اور ہاتھ پھیلانے میں کبھی اپنی ماں کو مارتا ہے، اپنی ماں کو بیمار بتاتا ہے، کبھی اپنی بیٹی کو بیمار بتاتا ہے، کبھی اپنے بچے کو بیمار بتاتا ہے، کبھی خود کو بیمار بتاتا ہے، حالانکہ بیمار نہیں۔ اور یہ صرف یہاں کا نہیں مسئلہ، یہ انٹرنیشنل لیول کا بن گیا ہے۔ آپ سرچ کر کے دیکھ لیجیے، تلاش کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو پتا چل جائے گا۔ بیمار نہیں ہے لیکن اس نے کہہ دیا ہماری ماں بیمار ہے، بیمار نہیں ہے لیکن کہہ دیا کہ میری بیٹی بیمار ہے۔ کاغذات تک تیار کروا لیتے ہیں ڈاکٹروں سے مل کر کے، ان کو تھوڑے پیسے دے کر کے، ہر جگہ کرپشن ہے، اور آ کر کے معاملہ شروع کر دیا۔ ڈاکٹروں نے کہا میرا بھی کیا جا رہا ہے، بنا کے دے دو، میڈیکل رپورٹ بنا کے دے دی، انہوں نے معاملہ شروع کر دیا، ابھی مانگ رہے ہیں، اپنی عزت کو خراب کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے اسباب، کبھی کبھی جو خطرناک آرگنائزیشن ہوتی ہیں، تنظیمیں، تحریکیں ہوتی ہیں، خفیہ تحریکیں، تنظیمیں، وہ بھی اپنے کارندے زمین کو اتارتی ہیں تاکہ پیسہ جمع کیا جائے، اور پیسہ جمع کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے ہتھیار خریدے جائے، اس کے ذریعے سے دیگر اسلحے خریدے جائے اور پھر آتنک مچایا جائے۔ یہ بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ اس پر معاونت ہماری شامل ہوتی ہے، ہماری اور آپ کی شامل ہوتی ہے۔ ہم تحقیق نہیں کرتے، جان پڑتال نہیں کرتے، اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، ہم نے دے دیا اس کو، اور خوش ہو رہے ہیں دل ہی دل میں کہ ہم نے ایک نیک کام کر دیا۔ شیطان بھی خوش ہے کہ تم نے دیا ہے تو ہمارا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمہیں اس سے کوئی نیکی ملنے والی نہیں ہے۔ ہمیں تو فرق وہاں پڑتا ہے جہاں نیکی ملنے والی ہوتی ہے۔ شیطان کو فرق کہاں پڑتا ہے؟ جہاں بندے کو نیکی ملنے والی ہوتی ہے، اور جہاں نیکی نہیں ملنے والی ہوتی اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صبح نکلے، دیکھا شکاری بیٹھے یہاں وہاں، ترتیب سے بٹھا دیے گئے، رات ہوئی، گاڑی آئی، بھر کے لے گئی، اور پھر صبح ہوئی، بٹھا کر چلی گئی، اور ہم نے صبح اٹھ کر کے ان کی جو ہے معاونت کی کسی غلط کام پر، اس غلط گناہ پر، اس گناہ پر ہم مدد کرتے ہیں، جبکہ ہمیں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی پر مدد کرو، تقوی پر مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر مدد نہ کرو، سرکشی پر مدد نہ کرو، لیکن ہم یہ مدد کرتے ہیں۔
हम मदद करते हैं, हम इसको बढ़ावा देते हैं। हम कभी पूछने की कोशिश नहीं करते कि भाई तू मांगता क्यों है, तो कोई काम क्यों नहीं कर लेता। एक बंदा पूरी ठेला लेकर के एक 50 किलो आदमी को बिठा करके चला सकता है, तो क्या वो 50 किलो के फल नहीं बेच सकता? हम नहीं सोचते। ऐसे को देने उनका स्वभाव है, ऐसे को निकल करके देखो, इसको देना जो स्वभाव का काम है, इसको देना स्वभाव का काम है। तो भाई तू ये काम क्यों नहीं करता? इसको चीर सकता है, गलियों में घुमा सकता है, क्या एक ठेले पर फल रख करके, सब्जियां रख करके बेच नहीं सकता? क्यों नहीं बेचेगा वो? क्योंकि उसे पता है सब्जियां बेचेंगे तो थोड़ा सा मुनाफा होगा, इसको घसीट करके लोगों के जज्बात से खेलेंगे, ब्लैकमेल करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा, मुनाफा ज्यादा होगा। और वो इस तरह से अपनी आग इकट्ठा करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सअल अन्नास अमवालहुम तकत्तुरन इन्नमा यसअलु जमरन फलयस्तकिल्ला औ लियस्तकबिर। प्यारे आका फरमाते हैं, हमारे और सबके आका जो रहमतुल लिल आलमीन है, बड़े रहमदिल बनते हैं, इनसे बढ़कर के कोई दुनिया में रहम करने वाला नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन है, जिनको रहमत बना करके भेजा गया। तो क्या इरशाद फरमाते हैं कि जिसने लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज किया, मांगा, किस गरज से? तकत्तुरन, माल की बढ़ोतरी के लिए, इजाफे के लिए, शरई कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी लोगों के सामने हाथ फैलाया, लोगों से भीख मांगी। फइन्नमा यसअलु जमरन, वो आग तलब कर रहा है, अंगारा मांग रहा है लोगों से। फलयस्तकिल्ला औ लियस्तकबिरा, अब वो चाहे वो आग के इन अंगारों को कम सब जमा करे या ज्यादा जमा करे। अब हमारा भाई एक आग जमा कर रहा है और हम आकर के और उसकी आग में इजाफा कर रहे हैं, और आग में इजाफा कर रहे हैं कि भाई और मांगो, हम तुम्हें और देंगे, और मांगो, हम तुम्हें और देंगे। हम मुआवजत कर रहे हैं। हमारा एक भाई, हमारी बहन ये काम कर रही है, पेशा इख्तियार कर चुकी है, उनका गुजारा इसी पर है। इस्लाम ने हमें मोहताजों के बारे में कहा कि इनको अता करो। इस्लाम ने हमसे ये कहा गरीबों की मदद करो। इस्लाम ने हमसे कहा यतीमों की मदद करो। इस्लाम ने हमसे कहा बेवाओं की मदद करो। लेकिन साथ ही साथ उनको भी मशवरा दिया कि हाथ बिना जरूरत किसी के सामने न फैलाओ। क्यों? क्योंकि हाथ फैलाना, असल भीख मांगना, ये इसके अंदर नाजायज है। असल में ये नाजायज काम है। भीख मांगना, किसी के सामने दराज करना, ये असलन नाजायज काम है। असल के लिहाज से, हकीकत के लिहाज से इसकी जो नाजायजपन खत्म हुआ है वो जरूरत की बुनियाद पर। जब जरूरत शदीदा हो तो इस्लाम ने रुख्सत दी है कि चलो भाई हाथ फैला लो किसी के सामने। जरूरत हो तो इजाजत दी गई है। लोगों के पास कोई जरूरत नहीं है, पेशा बना लिए हैं, धंधा बना लिए हैं, जिंदगियां गुजर गई हैं, पीढ़ियां गुजर गई हैं, नस्लें गुजर गई हैं, यही काम करते हैं। और उसमें हाथ हमारा शामिल है, मदद हमारी शामिल है। हमसे इसके बारे में भी सवाल किया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या मालूम है? इन भिखारियों की वजह से नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो असलन मुस्तहिक होते हैं, जो हकीकी मानों में मुस्तहिक होते हैं, वो बेचारे पिट जाते हैं, उन तक माल नहीं पहुंच पाता। हम अगर किसी को देंगे तो किसी का हक देंगे, किसी को नाहक देंगे तो किसी का हक मारेंगे। ये बात याद रखें। किसी को अगर हम देंगे, नाहक देंगे तो किसी का हक मार करके देंगे। हक था किसी और का, दे दिया किसी और को। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले न मालूम कितने सफेद पोश लोग हैं जो नहीं मांगते खुददारी की बुनियाद पर, नहीं सवाल करते खुददारी की बुनियाद पर, जिनको अगर आप देते तो डबल सवाब पाते। आपके रिश्तेदारों में कितने होंगे, आपके आसपास पड़ोस में कितने होंगे, डबल सवाब पाते। पड़ोसी हो नहीं मांगता, लेकिन आपको पता है कि बेचारा गरीब है, तो कभी आप उसके बच्चों को दे दो। आपको लग रहा है कि मैं इसको डायरेक्ट दूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, तो उसके बच्चों को आप नवाज दीजिए कभी, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। डबल सवाब है वहां पर आपके लिए, आपकी शरीयत के मुताबिक, कि अगर आपने पड़ोसी को दिया तो डबल सवाब, एक हमसायगी का हक अदा करने का, दूसरा उसकी हाजत पूरी करने का। एक रिश्तेदार को आपने दिया, उसकी हाजत को पूरा किया तो डबल सवाब, एक रिश्तेदारी निभाने का और दूसरा उसकी हाजत को पूरा करने का। जहां डबल सवाब है वहां तो आप सोचते ही नहीं हो, और जहां पर सवाब नहीं है, गुनाह को बढ़ावा देना है, वहां पर देखकर के खुश हो जाते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ उस वक्त होती है कि जब कोई हकीकी मानों में मुस्तहिक इंसान हो और उसका हक नहीं पहुंच पाए, शक पैदा हो जाए कि पता नहीं ऐसा ना हो कि ये भी। बहुत से लोग आते हैं बाद में, फिर मुझे बड़ी तकलीफ होती, पता नहीं ऐसा
हो के यार ये भी कहीं मुस्तहिक हो और ये इस वजह से मारा जाए। तो ये चीज क्यों पैदा हो रही है? इन लोगों की वजह से, इन फराडियों की बुनियाद पर ये शक पैदा हो गया माशरे के अंदर। हकीकी मुस्तहिकीन तक उनका हक वो मांगते नहीं है, तलब नहीं करते। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता ला यसअलून नास इल्हाफा, वो लोगों से नहीं मांगते। और जाहिल समझता है कि वो अगनिया है। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि जाहिल समझता है, अनादान इंसान समझता है कि ये मालदार लोग हैं, हालांकि वो मालदार नहीं है, गरीब हैं, लेकिन वो सवाल नहीं करते खुद तारीख की बुनियाद पर। ये कुरान कहता है, तो उनको नहीं देते लोग। और जहां पर गुनाह का बढ़ावा देना है वो दे देते हैं। ऐसे इतना फारूक आदम, वो फारूक हक को बातिल की जो है के दरमियान तफरीक करने वाले हमारे और आप सब के लीडर फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गश्त कर रहे थे। मगरिब का के बाद का वक्त था। एक साहिब को देखा, यसअलुन्नास, लोगों से मांग रहा था। आपके साथ लोग थे, उनसे कहा अश्रब रजुला, इसको डिनर करा दो, इसको इशाया खिला दो, शाम का खाना खिला दो इसको। तो उसको खिला दिया गया। फिर सुना, फिर वो मांग रहा, तो आपने जो साथ में था उससे कहा अना अकुल लका अश्रब रजुल, क्या मैं तुमसे नहीं कहा था कि इसको खाना खिला दो? उसने कहा हुजूर खिला तो दिया, इसको खिला दिया। और नजर आई नहीं, तो आपने उसकी तरफ देखा, उसका साथ में झोला था, उसके झोले में रोटियां पड़ी हुई थी। फिर उससे पूछा और उसे फरमाया तू साइल नहीं है, तू मुस्तहिक नहीं है, इन्नमा अंत ताजिर, तू ताजिर है। और उसका झोला लेने के बाद जो रोटियां थी और उन सदके के जो ऊंट थे उनके सामने डाल, उसको खिला दी। और उससे कहा दुर्रा मार करके दुर्रा लगाया उसके और कहा ला तरो, ला तरो, अब वापस नहीं आना, अब वापस नहीं आना, दिखाई मत देना। ये हमारे एक बड़े लीडर का रवैया क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि जिल्लत वाला काम कर रहा है। रब अज़्ज़ व जल इज्जत देना चाहता है, बंदा जो है अपनी इस इज्जत को पामाल कर रहा है लोगों के सामने, उनसे भीख मांग रहा है। एक नाजायज काम है जिसके लिए रुख्सत दी गई है बवक्त जरूरत, और ये मांग रहा है वो भी जमा करने के लिए। कितने भिखारी हैं, झोलियों में आटा भरा हुआ है, फिर भी चुटकियां मांग के घूमते नहीं घूमते। आपने दे दिया दूसरे दरवाजे पर, तीसरे दरवाजे पर, चौथे दरवाजे पर। क्या ये तुम्हारी हाजत पूरी हो गई? भूख लगी खाना खिला, भूख लगी खाना खिला लो। इस्लाम में खाना खिलाना बहुत है अच्छा काम है। प्यासे को पानी पिला दो, बहुत अच्छा काम है। मरीज है, जाओ उसके साथ में उसको दवा दिला दो, अच्छा काम है। कोई नंगा है, कपड़े पहना दो, बहुत अच्छा काम है। लेकिन जिसकी ये कंडीशंस ना हो, पेशा बना लिया हो, तो फिर याद रखो अब आप नेक काम नहीं कर रहे हो, गुनाह पर मदद कर रहे हो। धंधा बना लिया है, फिर भी आप उसकी मदद कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। और ये मामला यहाँ तक पहुंच गया मस्जिदों तक। मस्जिदों के अंदर नमाज खत्म हुई, खड़ा हो जाता बंदा और रोना गिड़गिड़ाना बंदों के सामने। वो आंसू जो रब के सामने बहना चाहिए थे, या वो आहो पुका जो रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में होना चाहिए थी, बंदों के सामने हो रही थी, उसके घर में हो रही थी। उसके घर में हो रही होती है, किसके सामने? बंदों के सामने। जबकि हमारे बड़ों ने फरमाया कि बंदों के सामने रोना गिड़गिड़ाना ये जिल्लत नफ्स है, ये जिल्लत है। और अपने मौला के सामने रोना गिड़गिड़ाना ये शराफत की बात है, ये इज्जत की बात है। हमारा मौला हमारा अल्लाह है, हमारा आका हमारा अल्लाह है, उसके सामने हमें गिड़गिड़ाना चाहिए। उसके घर में आकर के नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, रोना शुरू, गिड़गिड़ाना शुरू, हालांकि कोई जरूरत नहीं होती है। अब उनका देखिए टटोलते हैं वो लोग नफ्सियात को कि इंसान किस नाम पर देगा, बीमारी के नाम पर प्राइस पर दे देगा, अच्छा शादी के नाम पर भी दे देगा, लड़की की शादी बता देंगे, ब्लैकमेल कर देंगे, उनके जज्बात से खेलेंगे, लोग दे देंगे। जबकि आपको पता है इस्लाम में शादी के लिए कोई खर्चा लड़की वाले पर रखा ही नहीं, बल्कि उसको देना है, उसको तो फायदा है शादी से, लड़की वाले का तो फायदा है शादी में इस्लाम के मुताबिक, कि उसको महर दिया जाए। समझ रहे आप? अब शादी के नाम पर आकर के मांगने लग जाते हैं। तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि किसी ने अगर शादी के लिए मांगा तो ये देना जायज नहीं है, उसका मांगना हराम है। अब कोई कहे कि भाई ये देना पड़ता वो देना पड़ता, ये तुम्हारा अपना मसला है पर्सनल, तुमने क्रिएट किया है, ये इस्लाम ने नहीं किया। तुमने मुसीबतें अपनी अपनाई है, बोल ली है, तुम्हारे मुआशरे ने नहीं की है, तुम मुआशरे से लड़ो, आवाज बुलंद करो इसके खिलाफ। ये मुआशरे ने पैदा किया ना, इस्लाम ने नहीं पैदा किया। इस्लाम में क्या है? लड़की लड़का दो गवाह, शादी की भी जरूरत नहीं है।
आप अगर देखो हकीकी मानों में बात समझ आ रही है, इस्लाम में तो कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा काम था, लड़का लड़की और दो गवाह। लड़के ने कहा कि मैंने तुमसे शादी की, लड़की ने कहा मैंने कबूल कर लिया, तो गवाहों के सामने हो गया निकाह। कोई खर्चा नहीं था, फायदा लड़की का था, उसको मेहर देना था, लड़के पर था। लड़कों से कहा या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अल-बाल फल्यतज़व्वज, मेरे आका ने लड़कों से कहा कि तुम में से जो निकाह की ताकत रखता हो, फिजिकली खिलाने पिलाने की नफ्ते की, वो शादी करे। ये मेरे आका ने फरमाया था। तो लड़की वाले को तो कुछ था ही नहीं, तुम आए क्यों मस्जिद में मांगने के लिए, इतना जायज काम करने के लिए। हाँ, लोग आपस में खुद ही करते हैं किसी के घर, वो एक अलग काम है। खुद से लोगों ने महसूस किया और मदद कर दी, एक अलग काम है, उसमें भीख मांगना नहीं कहलाएगा, वो तोहफा देना कहलाता है। तोहफा एक अलग चीज है। तो अहकाम तब्दील हो जाते हैं सिचुएशन बदल जाने से। प्यारे आका ने फरमाया हाथ दो, तोहफे दो, मोहब्बत बढ़ेगी। वो एक अलग चीज हो गई, आपको तोहफे में गिफ्ट में दे दिया, लेकिन वो बंदा हाथ फैला रहा है, वो भी अल्लाह के घर में आकर के, ये बड़ा मसला है। भीख मांगी किसी ने अपनी जात के लिए मस्जिद के अंदर, तो उलमा ने यहाँ तक लिखा कि जिसने उसको 1 रुपया दिया वो 70 रुपया और दे, ताकि कफारा बने इसका, इस गुनाह का कफारा बने। और हम ये करते हैं, हम जज्बात में आ जाते हैं, दुनिया को देखना नहीं चाहते, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग हथकंडे अपनाते हैं, और हम जज्बात में आकर के कदम उठाते हैं। और नुकसान उन लोगों का होता है जो हकीकी मानों में मुहताज होते हैं, हकीकी मानों में यतीम होते हैं, मिस्कीन होते हैं, हकीकी मानों में जरूरतमंद होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने मांगा, हुजूर ने उसको दे दिया, फिर उसे तीसरी मर्तबा मांगा, उसको भी दे दिया, फिर दे दिया, फिर 3 मर्तबा उसने मांगा, आपने दे दिया। आखिर उससे फरमाया इन्नमा हादिहिल अमवाल हदिरुन हुल्बतुन, ये जो अमवाल है ना, ये मांग रहे हो अमवाल, ये सब्ज हैं, मीठे हैं, लेकिन सुनो, मन तलबहु बितीबिन नफ्सी फयुबारकु लहु फीही, जो तीब नफ्स के साथ अपनी इज्जत को बचा करके इनको हासिल करने की कोशिश करेगा, बरकत दिया जाएगा। वमन तलबहु बिइशराफिन नफ्सी, अपनी इज्जत को दांव पर लगा करके हासिल करेगा, ला युबारकु फीही, बरकत नहीं दी जाएगी उसके उस माल में। और क्या फरमाया, और फरमाया वहुवा कल्लज़ी याकुल वला यशबा, वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि बंदा एक है, खाता है लेकिन शिकम से नहीं होता, खाता जाता है लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। ऐसे ही हो जाएगा वो बंदा जो अपनी इज्जत को दांव पर लगा करके माल हासिल करेगा, तो वो खाएगा लेकिन पेट का नहीं भरेगा। मेरे आका ने फरमाया मन फतहा बाबल मसअलती फतह अल्लाहु बाबल फक्र अलैहि, जो अपने ऊपर गदागदी का दरवाजा खोलता है, भीख मांगने का दरवाजा खोलता है, अल्लाह उसके लिए फक्र का दरवाजा खोलता है, उसके लिए फाके का दरवाजा खोलता है, हमेशा मांगते ही रहेगा, मांगते रहेगा। और क़यामत के दिन आएगा, ला यकूनु फी वजहिही वसअतु लहमिन, उसके चेहरे में गोश्त नहीं होगा। उलमा इसके बारे में लिखा कि गोश्त नहीं होने का मतलब यह है कि जलील होकर के आएगा, अरे मजमे में जलील होकर के आएगा। अल्लाह, बहुत सारी हदीसें इस मौजू पर, इमाम मैंने जो रिवायत पेश की उससे वाक़या पेश किया उमर फारूक का, ये इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, बहुत बड़े सूफी हैं, उन्होंने लिखा इहया उल शरीफ के अंदर बहुत सारी हदीसें और बहुत सारा कहना है, लेकिन असल लुबाब ये है कि काम को देखिए, जायज को जायज समझ करके कीजिए, जो जायज है उसको कीजिए, बिला वजह अपने आप को गुनाहों में मत डालिए, गुनाहों पर लोगों की मदद मत कीजिए। कभी थोड़ा कुछ किया कीजिए किसी को देने से पहले कि भाई मोहताज होगी या नहीं हो, जरूरतमंद होगी नहीं हो, कम से कम इतना तो बनता नहीं आपके ऊपर तहकीक करना, कुछ लेना, ताकि आपका पैसा गलत जगह न जाए, नशेड़ियों के पास न जाए, भिखारियों के पास न जाए, मुस्तहिक के पास, और मुस्तहिक के पास पहुंचना ये काबिल सवाब है।